ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ 5th ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 5th ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਫਸਟ 4 ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। 5th ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। 1 April ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਮੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹2,40,000 ਰੁਪੀਜ਼। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਕੈਸ਼, ਇਕੱਲੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ₹2,40,000 ਰੁਪੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋਨ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼। ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,800 ਰੁਪੀਜ਼। ਹੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਤੀ, ਉਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ April 15 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਡ ₹11,000। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਹੀ ਵਿਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੈਸ਼ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲਗਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕੈਸ਼ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਸੋ ਕਾਰ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ, ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਜੂ ਕਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ C.K. ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਆਪਾਂ C.K. ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕਸ ਆਫ C.K. ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਰਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਫੋਰਮਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਕੋਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਟੀਕੂਲਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜ਼ਰ ਫੋਲੀਓ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੈਬਿਟ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇੱਥੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਸ, ਡੇਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ April 1 ਦੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਮੈਂਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹2,40,000। ਸੋ April 1, ਠੀਕ ਹੈ। 2015 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ, 2015 ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਊਗੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹2,40,000। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ₹2,40,000। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ₹2,40,000। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਕੈਸ਼। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट April 14 ਦੀ कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 18,500 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कैश विड्रॉन ਕੀਤਾ ਹੈ। सो ये पर्सनल यूज ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ स्टूडेंट। सो एंट्री होगी ड्राइंग टू कैश April 4। इस दी डिस्कशन स्टूडेंट सब तो फर्स्ट और सैकेंड जो मेरिया
वीडियोज़ है उत्थे मैंने इसनों डिस्कस किया कि आप कैपिटल क्यों लिखते हैं, ड्राइंग क्यों लिखते हैं। जिसने अजे तक वीडियोज़ नहीं देखिया सो पहले उस वीडियोज़ नू देखो और रूल्स समझो, फिर ये ट्रांजैक्शंस करनी है, ठीक है। सो अपनी एंट्री बन गई ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 18,500। सो नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट अपने को एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के 24,800 के नाल अप्रैल 10। सो आप डेट पानी है पहले अप्रैल 10। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, सो कैश टू कैपिटल। आप उपरली एंट्री की नरेशन पा दी पहला बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 24,800। सो इधर नरेशन की बनती है बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नैक्सट एंट्री स्टूडेंट अप्रैल 15 की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 11,000। इसनों आप पर्सनल एक्सपेंस ट्रीट करना है। लाइफ इंश्योरेंस आपने खुद ही लाइफ के इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, अपने खुद के एक्सपेंसिज है। सो आप बिजनेस के विचों पे कर रहे हैं, सो इसनों आप ड्राइंग ही विदते हैं। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,000 being life insurance paid। नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट अपने को पर्सनल कार इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ₹4,50,000। पर्सनल कार सी वो बिजनेस के लगाती। इट मीनस जो भी आप अपना पहले कैश लगाने बिजनेस के वो भी पर्सनल ही होंगे, उसमें आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। सो हम पर्सनल कार लगाती, सो कैश की जगह हूँ कार आ जाऊगी, कार टू कैपिटल। अप्रैल 20 की एंट्री है, डेट मैंशन करनी है। उस तो बाद कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किन्ने रुपीस नाल 4,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे लिखना है अपने बीइंग पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ठीक है। बीइंग पर्सनल कार इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। उस तो बाद स्टूडेंट अपना सिर्फ काम की रह जाता है टोटल करना डेबिट और क्रेडिट का। देखो जिन्ने नाल आप डेबिट किया उन्ने नाल ही क्रेडिट किया, सो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिलेगा ही। तुसी देखो टोटल करके कितना आ जाता है। मेरा तो स्टूडेंट्स आ गया स्टूडेंट आ गया 7,44,300। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जनरलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुषमा। सुषमा दी बुक्स आप बना रहे हैं। सुषमा ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द बैंक बैलेंस 4 लाख। हुण कैश की जगह बैंक आ जाऊगा, ठीक है। मार्च बनती है, मार्च 4 दी एंट्री पेड फॉर हॉलीडे ट्रिप ऑफ सुषमाज फैमिली फ्रॉम द बिजनेस के विचों पर्सनल एक्सपेंस किए, इट मीनस ड्राइंग होगी। मार्च 6 इनकम टैक्स पेड बाय चैक, इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स भी पे किया हो, ये भी अपना एक पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। थ्रू चैक किया वो आप चैक के थ्रू किया। अगर कैश आप जिथे जिथे कैश लिखते थे हम उत्थे आप बैंक लिखना है, क्योंकि इतने हम चैक किया है इन्होंने। उस तो बाद स्टूडेंट है फर्दर कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। और कैश इंट्रोड्यूस करता प्रोप्राइटर कौन है, जो ओनर होंगे, ओनर सुषमा है, ठीक है। आप सुषमा दी बुक्स बना रहे हैं। और कैश इंट्रोड्यूस करता मीनस कैश टू कैपिटल।
रेंट ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्रोपराइटर पेड फ्रॉम हिज ओनर रेजिडेंस मतलब आपदे घर दा रेंट पे किया आपदी पॉकेट दे विचों इट मीनस बिजनेस नाल तो कोई रिलेट नहीं करता ना ठीक है सुषमा ने आपदा घर दा रेंट आपदी ही पॉकेट दे विचों पे करता सो बिजनेस दे नाल कोई रिलेशन नहीं हैगा सो नो एंट्री आएगी पर्सनल कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर द बिजनेस परपस ਲਈ फर्नीचर परचेज किया है पर्सनल कैश लगा के ठीक है अगर पर्सनल कैश लगाया होवे ये अपनी कैपिटल आप कहने सो एंट्री की पै जू फर्नीचर टू कैपिटल जिस तरीके नाल आपां कार वाली एंट्री की सी उस दे विच भी कि सी कार बिजनेस दे विच इंट्रोड्यूस की सी उस तरीके नाल हुण फर्नीचर लिआंदा बिजनेस दे विच थ्रू कैश पे किने कीता जो ओनर है उसने अपनी अपना कैश जो पे करके बिजनेस दे विच फर्नीचर लिआंदा है सो ए जी एंट्री वन जो फर्नीचर टू कैपिटल नेक्स्ट है परचेज AC फॉर पर्सनल यूज एंड पेमेंट मेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट स्टूडेंट्स देखो इत्थे AC परचेज किया पर्सनल यूज ली पर पेमेंट कितों की बैंक बिजनेस के बैंक अकाउंट दे विचों मतलब ड्रॉइंग हुई आपां बिजनेस का पैसा आपदे पर्सनल यूज लिए यूज़ कर रहे हैं सो इत्थे की है ड्राइंग है अपनी ड्राइंग होगी नैक्सट है गुड्स विड्रॉन कितने पर्सनल यूज ली अगर आप हुण बिजनेस के विचों गुड्स कढ़ा लीए वो भी अपनी ड्राइंग है ठीक है पर्सनल यूज लिए आप गुड्स बिजनेस के विचों निकाल लिया नैक्सट है रेंट रिसीव्ड ऑन बिजनेस अकाउंट डिपोजिटेड इन पर्सनल बैंक अकाउंट रेंट रिसीव होया सी बिजनेस अकाउंट दे विच उसनूं आपां डिपोजिट कित्थे करा लिया पर्सनल बैंक अकाउंट दे विच सो जो बिजनेस का पैसा सी वो पर्सनल बैंक अकाउंट दे विच आपां जमा करा लिया इट मीनस ये कि अपनी ड्राइंग है आपां पर्सनल यूज लिए यूज़ कर रहे हैं हैगा बैंक का रुपया सी अपने पर्सनल लिए आ गया ठीक है सो ये भी एक ड्राइंग है हुण आपां इसनूं वन बाय वन डिस्कस भी करांगे और इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी करांगे फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट सुषमा स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस 4 लाख March 1 2018 दी बुक्स बन रही हैं ठीक है सुषमा ने बिजनेस शुरू किया है बैंक नाल सॉरी हुण इत्थे कैश नहीं आना इत्थे बैंक आऊगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹4 लाख नरेशन क्या होगी बीइंग started Venus with bank balance second entry students paid for holiday trip of Sushma's family from the Venus सुषमा का जो सुषमा फैमिली है उसकी उसकी फैमिली के लिए हॉलीडे ट्रिप प्लान किया ठीक है हॉलीडे ट्रिप का खर्चा पे किया बिजनेस के विचों हॉलीडे ट्रिप मतलब उसकी सुषमा की फैमिली लिए इट मीनस पर्सनल एक्सपेंस किया ठीक है सो ये पर्सनल एक्सपेंस है इट मीनस ड्राइंग हो गई March 4 दी एंट्री अपने को ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बिजनेस दे विचों कैश गया कितना रुपया गया है 95,000 इत्थे हुण आपां रीजन दे देंगे बीइंग पर्सनल एक्सपेंसिस पेड फ्रॉम बिजनेस ठीक है नरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नरेशन ना लिखोगे थोड़े मार्क्स कट किए जाएंगे ठीक है नेक्स्ट इज March 6 की एंट्री है स्टूडेंट्स इनकम टैक्स पेड बाय चेक इनकम टैक्स पेड किया है मैं थोड़ा दस के हटी हाँ इनकम टैक्स की है एक पर्सनल एक्सपेंस है सो इसनों भी आप ड्राइंग ट्रीट करांगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19,000 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਚੈੱਕ। ठीक है, नैक्सट एंट्री है मार्च 10 दी, फर्दर कैश इंट्रोड्यूस कर लिया बिजनेस के विच, इजी एंट्री की वैल्यू कैश टू कैपिटल। नैक्सट एंट्री स्टूडेंट मार्च 14 दी, मार्च 14 दी एंट्री की कहता है रेंट पे किया है, रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर पेड फॉर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। रेजिडेंस मतलब जिथे वो रह रही है, सुषमा जो जिथों रह रही है उसका रेंट पे किया उसने आपदी ही पॉकेट दे विचों। इट मीनस बिजनेस नाल कोई रिलेशन नहीं हैगा, बिजनेस के एक्सपेंस बिजनेस के विचों पैसा नहीं निकालिया उसने। ठीक है, आपदी उसकी आपदी पॉकेट दे विचों निकालिया, मतलब परसनल एक्सपेंसिस दे विचों ही परसनल एक्सपेंस पे किए है। सो नो एंट्री। इत्थे आपां सोई ट्रांजैक्शन लिखते हैं जिथे बिजनेस दी जो पैसा वो अफेक्ट किया होवे। ठीक है, इत्थे बिजनेस का जो भी पैसा उस दे विच कोई इफेक्ट नहीं आया, सो आप कोई एंट्री नहीं पावांगे। मार्च 18 की एंट्री है पर्सनल कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर द बिजनेस 18,000। पर्सनल कैश पे किया है, फर्नीचर बिजनेस के आ गया। ठीक है, पर्सनल कैश पे किया फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर द बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया। सो एक कैपिटल बन गई अपनी बिजनेस की। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 18,000। नैक्सट एंट्री स्टूडेंट अपने को मार्च 22 दी, परचेज AC फॉर पर्सनल यूज एंड पेमेंट मेड फॉर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस के बैंक अकाउंट के विचों आप पेमेंट की 24,000 की, क्योंकि आप AC परचेज किया अपने घर के लिए AC परचेज किया। ठीक है, पर्सनल यूज लिए AC परचेज किया। सो अपनी ड्राइंग होगी मार्च 22 ड्राइंग। पैसा कितों पे किया अपने बैंक दे विचों। ठीक है, कितनी अमाउंट है अपने को 24,000। इतने नरेशन लिख दियो, फॉर पर्सनल AC पेमेंट मेड फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट है स्टूडेंट मार्च 26 की एंट्री, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज लिए गुड्स परचेज गुड्स विड्रॉ की हैं स्टूडेंट। अगे आप कैश विड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैश है जो बिजनेस आ वो यूज़ करते हैं। हुण आप बिजनेस दी गुड्स भी अपने घर लिए यूज़ करन लग पे। हुण मैं तुहानूं जो टॉपिक कराया सी गुड्स वाला उत्थे दस्सिया सी, उत्थे आप गुड्स नहीं यूज़ करते होंदे। जो आप एंट्री पाने हैं गुड्स नहीं यूज़ करते। जो भी परचेज और सेल करिए गुड्स की, उस टाइम आप परचेजिज लिखते हैं या सेल्स लिखते हैं, गुड्स नहीं लिखते। सो आपने इत्थे एंट्री पावांगे स्टूडेंट्स मार्च 26 की एंट्री। देखो आप परचेज की एंट्री मैं रिपीट कर दिया, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फीस 9,000। गुड्स विड्रॉ करा लिया बिजनेस के विचों किसी लिए पर्सनल यूज लिए। सो एक तो यह ड्राइंग तो है ही। ठीक है, डेबिट तो आप ड्राइंग अकाउंट में कर देंगे 9,000 के नाल। क्रेडिट स्टूडेंट आप परचेजिज में करांगे किन्ने नाल 9,000 के नाल। ठीक है, being withdrawn for being goods withdrawn for personal use।
परचेजिज इसलिए क्रेडिट करते हैं स्टूडेंट क्योंकि जो बिजनेस ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਔਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 40,000। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਬਣ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ डिपोजिट करा लिया हैगा तो बिजनेस का सी, लेकिन हुण ये ड्राइंग बन गई। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, क्योंकि आप रेंट जो रिसीव होया उसनों आप पर्सनल यूज ਲਈ प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। सो इसनों ड्राइंग ट्रेड किता ਆਪਾਂ ਨੇ 40,000 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾर्ड ਕਰ ਲਾਂਗੇ ट्रांजैक्शन ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला टॉपिक समझाया सी और दसिया सी जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका कोई अलग अकाउंट ओपन नहीं करते ਆਪਾਂ, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होंदा उसनों आप अलग शो करते हैं एज अ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। अगर आप डिस्काउंट अलाउ किया हो किसी परसन को सो वो अपना एक्सपेंस होंदा बिजनेस लिए एक्सपेंस हो जाता है, सो उसनों आप डेबिट करते होंगे। अगर आप डिस्काउंट रिसीव होया हो आप उसनों क्रेडिट करते होंगे। सो इस रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शनस ने। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मुलायम सिंह की अपने जर्नल बनानी है, उसदियाँ कुछ ट्रांजैक्शन है वो देखो। फर्स्ट है रिसीव 1900 फ्रॉम मायावती अलाउड हर 100 रुपीज़ एज डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। अपन जो रिसीव कर रहे होंगे कैश उस टाइम आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं, इट मीनस एक कैश डिस्काउंट है। पे 2400 टू मिस्टर एंड अवेल्ड आ डिस्काउंट 100 रुपीज़, आप मिस्टर को पे कर रहे थे, आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। इस तरीके स्टूडेंट थर्ड एंट्री है, इतने आप रिसीव कर रहे हैं अमर सिंह तो उसने 4000 उसका 4000 बनते सी, उसने अपन 3950 रुपीज़ देते, इट मीनस 50 रुपीज़ आप डिस्काउंट अलाउ करता, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड इसनों आप डेबिट करांगे 50 रुपीज़ ना। नैक्सट एंट्री है पेड 4390 टू अखिलेश बाय चैक इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 4500, आप डिस्काउंट रिसीव हो गया 110 रुपीज़ के नाल आप डिस्काउंट रिसीव हो गया। 15th एंट्री देखो स्टूडेंट सुरेश यादव हु ओड 5000 रुपीज़ पेड द अमाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बाय अवेलिंग 3% कैश डिस्काउंट। सुरेश यादव एक पर्सन है जिसने अपने 5000 रुपये देने सी, उसने पे किस दे थ्रू करते अपन बैंक ड्राफ्ट भेजा उसके थ्रू अपन पे किए, लेकिन 3% का डिस्काउंट उसने ले लिया, इट मीनस आप 3% का डिस्काउंट उसनों अलाउ करता। आप 5000 का 3% कर लाँगे, अपने को 150 रुपीज़ आ गई, ठीक है। 150 रुपीज़ आप उसनों डिस्काउंट अलाउ करता। 16 मार्च 16 की एंट्री है दलीप यादव टू होम 6000 वाज पेबल, हिज अकाउंट वाज सैटल्ड बाय रिसीविंग ऑफ 1.5% डिस्काउंट, ठीक है स्टूडेंट। अपने जिसके 6000 देने से दलीप यादव के 6000 देने से आपने उसका अकाउंट सैटल करता, अपन डिस्काउंट रिसीव हो गया 1.5% का। आप कैलकुलेट करांगे 1.5% के नाल आपां जो कैलकुलेट करांगे 6000 के उत्ते 1.5% लावांगे अपन 90 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। उस तो बाद स्टूडेंट एंट्री है पेड 2400 बाय चैक टू रवि एंड अवेलिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹4%। आपां रवि को पे किया थ्रू अ चैक, ठीक है। चैक जिथे आ जाए उत्थे स्टूडेंट आप बैंक लगाने, रिमेंबर चैक मतलब बैंक दे विच ही होई होगी ट्रांजैक्शन, सो बैंक लिखांगे, कैश नहीं लिखते बैंक लिखांगे। सो 4% का अपन डिस्काउंट रिसीव हो गया इत्थे भी, ठीक है। 24 मार्च की एंट्री देखो, मार्च 24 रिसीव्ड 6860 रुपीज़ फ्रॉम संतोष अलाउिंग हर 2% कैश डिस्काउंट। अपन कैश रिसीव होया 6860, अपने उसनों डिस्काउंट अलाउ किया 2% का। सो आप टोटल अमाउंट देखा कितनी अमाउंट निकलती है, जिसके उत्ते आप 2% डिस्काउंट लगा के उस तो अपन रिसीव किन्ने हो गए 660 रुपीज़। देखो स्टूडेंट आप सोल्यूशन देखते हैं। सब तो फर्स्ट काम की होंगे स्टूडेंट स्पेसिमन बनाना, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट।
So student first transaction है March 1st दी received rupees 1900 from Mayabati and allowed her discount rupees 100. देखो स्टूडेंट्स, March 1 2018 cash account debit, discount allowed, account debit to मायावती। मायावती तो अपन कितना कैश रिसीव हो गया 1900, 100 रुपये का आप उसनों डिस्काउंट अलाउ करता, क्रेडिट करांगे टोटल ना 2000 के नाल। ओके, ड्यूरेशन स्टूडेंट्स तुसी खुद पानी है हरेक एंट्री दे विच। सैकेंड है March 2 दी एंट्री पेड रुपीज़ 2400 टू मिश्रा एंड अलाउ अवेल्ड आर डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 100। आप उसनों पे कर रहे हैं मिश्रा नूं, अपन 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया। सो मिश्रा अकाउंट क्रेडिट, मिश्रा अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना कैश पे कर रहे हैं 2400 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज़। मिश्रा अकाउंट डेबिट करांगे 2500 दे नाल। स्टूडेंट्स नरेशन जरूर पानी है तुसी। March 8 दी एंट्री है स्टूडेंट, उस तो बाद अपने को रिसीव होया 3950 रुपीज़ 3950 रुपीज़ फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज़ 4000। इट मीनस कैश अपने को कितना आ गया 3950। इट मीनस डिस्काउंट आप अलाउ किया होगा उसनों 50 रुपया का, क्योंकि उसका अकाउंट किन्ने रुपये नाल बोलता सीगा अमर सिंह 4000 दे नाल। ठीक है, सो हुण नैक्सट एंट्री अपने को March 9 दी, ये भी सैकेंड नाल दी है। पेड 4390 रुपीज़ टू अखिलेश बाई चैक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज़ 4500। सो आप डेबिट कर देंगे अखिलेश अकाउंट, अखिलेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू स्टूडेंट इत्थे उसने चैक नाल की है। सो आप इत्थे बैंक लिखांगे, अखिलेश ने अखिलेश नूं आप पे किस दे थ्रू किते, चैक दे थ्रू किता। सो आप बैंक लिखांगे इत्थे। ठीक है, किन्ने रुपये नाल आप बैंक किता 4390 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 110। टोटल कितना बनता सी अपना 4500, उसके विचों आपां 4390 रुपीज़ देते। ठीक है, इट मीनस आपां डिस्काउंट रिसीव हो गया 110 रुपीज़ का। उस तो बाद स्टूडेंट एंट्री है March 15 दी, सुरेश यादव जिसने अपने 5000 रुपये देने हैं, उसने बैंक ड्राफ्ट कटाता और कैश डिस्काउंट कितना ले लिया 3% का। 3% आप डिस्काउंट अलाउ करता। जो आप 5000 का 3% करांगे अपने को डिस्काउंट अलाउड आ जू 150 रुपीज़। बैंक अकाउंट अपने को कितना रुपया उसने देता अपन 4850। डिस्काउंट आप कितना अलाउ करता 150 रुपीज़ आ। ठीक है, 5000 के विचों 150 माइनस करके अपने को बैंक कितना आ गया 4850 टू सुरेश यादव। स्टूडेंट जिन्ना टाइम तुसी जो लास्ट वीडियो हैगी जिस दे विच मैंने हरेक ट्रांजैक्शन नूं एक्सप्लेन किया वो नहीं देखोगे, उन्ना टाइम तुहानूं ये नहीं समझ आनियां एंट्रीज। पहले तुसी टॉपिक नूं डीपली समझो, फिर जो एंट्रीज है वो तुहानूं समझ आएंगियां। सो मेरी रिक्वेस्ट है पहला तुसी जो मेरी लास्ट वीडियो है उस दे विच मैंने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, वो देखो, फिर तुहानूं ये आसानी नाल समझ आनी है ट्रांजैक्शनस। 5000 आप लिखता,
उस तो बाद मार्च 16 ਦੀ एंट्री अपने को दलीप यादव टू होम्स ₹6,000 was payable. His account is settled by receiving a discount 1.5%. ਦਲੀਪ यादव ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਦੇਣੇ ਸੀ 6,000 ठीक है. दलीप यादव अकाउंट डेबिट 6,000. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਤਾ. ਉਸਨੂੰ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ 1.5%. 6,000 ਦਾ 1.5% ਕਰੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 90 ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਉਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ. ਆਪਾਂ 6,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਦਲੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ 5910. ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ. ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰਚ 23 ਦੀ ਪੇ 2400 ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਟੂ ਰਵੀ ਅਵੇਲਿੰਗ ਅ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫ 4%. ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ 2400 ਰੁਪੀਜ਼ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਬਾਇਆ ਚੈੱਕ. ਸੋ ਰਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ 2400 ਰੁਪੀਜ਼. ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 2400 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4% ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਤੇ. ਜੋ ਰਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ 2400 ਪੇ ਕੀਤੇ ਆਫਟਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੇ ਕਰਤੀ 2400 ਪੇ ਕਰਤੀ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ. ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈ. ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ 23 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਮਾਈਨਸ ਰੇਟ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਨਿਕਲ ਜੂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਾਇਆ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਸੋਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਡ ਅਗਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਵੀ ਨੂੰ. ਸੋ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 2400 ਰੁਪੀਜ਼ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪੀਜ਼ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ. ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 4% ਰੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. डिवाइड बाय 100 माइनस 4%. सो 24 इंटू 4 डिवाइड बाय 96 अपने को स्टूडेंट आजू 100 रुपीज़. सो आप 100 रुपीज़ अपन डिस्काउंट रिसीव होया ठीक है. सो टोटल आप अपना पता चल गया अपन 100 रुपये का अपन डिस्काउंट रिसीव होया है. 2400 रुपया देता उसके उत्ते अपन 100 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव होया सी. इट मीनस आप टोटल 2500 रुपया देना सी ठीक है. 2500 रुपीज़ आप देने सी. जिस दे विचों आपां 2400 देते सी और अपने डिस्काउंट देखा कितना डिस्काउंट रिसीव होया है
इस दे लिए अपने फॉर्मूला किहड़ा लगाया है, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट पेड। इस सम दे विच आपां अमाउंट पे कर रहे हैं, सो आपां कितनी अमाउंट पे की है 2400 इंटू रेट डिवाइड बाई 100 माइनस रेट, अपने को आ गया 100 रुपीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट मार्च 24 की एंट्री है, रिसीव्ड ₹860 फ्रॉम संतोष अलाउइंग हर 2% कैश डिस्काउंट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 6860 ਰੁਪੀਜ਼। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 6860 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2% ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਇੰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਇੰਟੂ ਰੇਟ ਮਾਈਨਸ 100 ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਮਾਈਨਸ ਰੇਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ अमाउंट कितनी रिसीव हुई है 660 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 माइनस 2। सो कैलकुलेट करके स्टूडेंट अपने को आ जाऊगा 140 रुपीज़। यही अपने डिस्काउंट अलाउ किए हैं, ठीक है 140 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स अपन को पता चल गया कैश अपन इन्ना रिसीव होया, डिस्काउंट अपन इन्ने रुपये अलाउ किए, आप डिस्काउंट इन्ने रुपये अलाउ किए हैं। सो संतोष ने अपने टोटल 7000 रुपीज़ देने से, ठीक है इसका टोटल कर लिया। नेक्स्ट 17 सम देखो स्टूडेंट, ये बैड डेट्स और रिकवरी ऑफ बैड डेट्स ना रिलेट करते हैं। मार्च 1 आप बुक्स बना रहे हैं आरती दियाँ, ठीक है। पूजा हु ओड 60,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉम्पोजिशन 80% इज रिकवर्ड फ्रॉम हर। पूजा है जिसने अपने 60,000 रुपये देने से वो इंसॉल्वेंट होगी, ठीक है। इंसॉल्वेंट मीन्स दोबारा निकल जाना। उसकी फर्स्ट एंड फाइनल उसने 80% आप उस तो रिकवर कर लिया, 60,000 का 80% आप उस तो रिकवर कर लिया एज अ फाइनल रुपीज़, ठीक है। 60,000 का आप 80% करके देखांगे जो अपन रिसीव होगा। सैकेंड है रिकवर्ड 56,000 फ्रॉम स्ने इन ऑन हर इंसॉल्वेंसी बीइंग 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू। इट मीन्स स्टूडेंट आपां नूं 80% रिसीव हो गया, ठीक है। स्नेह तो आप 80% ले लिया। सो आपां नूं जो 56,000 रुपीज़ दिते हैं ये 80% ही है। आपां ने सिर्फ 20% निकालने हैं जो आपां नूं रिकवर नहीं होए, ठीक है। आपां देखांगे 20% किस तरीके नाल निकालिए जो अपन रिसीव नहीं होए। लेकिन जो फर्स्ट एंट्री सी स्टूडेंट उस दे विच अपन टोटल अमाउंट दे रखी सी, उस दे विचों अपन 80% रिकवर होए सी। आपां 60,000 का 80% करके अपने को आ जाऊ 48,000। सो अपन 48,000 रिसीव होए सी फर्स्ट एंट्री दे विच। लेकिन इत्थे स्टूडेंट अपन को की गिवन है जो 80% अमाउंट ही गिवन है, 80% 56,000 80% है। सो आप देखांगे 20% की है जो अपने बैड डेट्स हो गए 20% अमाउंट वो निकालांगे। उस निकालने के अपने हिंट भी दे रखे स्टूडेंट, आप देखते हैं आप बैड डेट्स निकालने जो 20% के अपन हो गए, ठीक है। बैड डेट्स अमाउंट रिकवर्ड किन्ने 56,000 इंटू परसेंटेज ऑफ नॉन रिकवरी अमाउंट, किन्नी अमाउंट नहीं रिकवर हो 20%, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ नॉन रिकवरी 100 माइनस 20 आप जो कैलकुलेट करांगे 14,000। सो 14,000 अमाउंट आप रिकवर नहीं हुई। 15 मार्च 15 की एंट्री है स्टूडेंट, रिकवर्ड 19,900 फ्रॉम आकांक्षा हुज अकाउंट ऑफ 24,800 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड इन द पास्ट। हुण आपां जो आकांक्षा का अकाउंट सी उसनूं आपां एज अ बैड लिखता सी, मतलब इस तो अपन नूं रिकवर नहीं होगा। 24,800 रुपीज़ अपने पहले किते पास्ट विच रिटर्न ऑफ करते सी एज अ बैड, मतलब आपां नूं ये रुपये रिसीव नहीं होंगे। लेकिन उस तो आपने 19,900 रुपीज़ रिकवर हो गई। सो एक ही अपना स्टूडेंट ये बैड डेट रिकवर्ड है। आप ट्रांजैक्शन पावांगे बैड डेट रिकवर्ड के नाल ते 19,900 अमाउंट पावांगे। सो अपने लिए 24,800 रुपीज़ इरेलीवेंट है। जस्ट आप एंट्री दे विच पाना 19,900 और जो अमाउंट रिकवर है उसमें आप क्रेडिट करते होंगे बैड डेट रिकवर।
March 21 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ who owed 45,000 is declared insolvent. ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ ਜਿਸਨੇ 45,000 ਦੇਣੇ ਸੀ is declared insolvent. First installment of 40% recovered from her. Student ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਿਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਲੀ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰਚ 31 ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਫ 30% ਕੁਡ ਬੀ ਰਿਕਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ 40% ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30%, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 70% ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ 30% ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਡੈਟ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, 30% ਆਪਣਾ ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 17th ਨੰਬਰ ਸਮ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਡੇਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੇਜ਼ਰ ਫੋਲੀਓ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਆਰਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਆਰਤੀ, ਆਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਚ 1 ਦੀ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 60,000 ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸੋਲਵੈਂਟ, ਉਹ ਇੰਸੋਲਵੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80% ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80% ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 60,000 ਦਾ ਤਾਂ 48,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਬੈਡ ਡੈਟ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 12,000 ਟੂ ਪੂਜਾ। टोटल किन्ने 60,000, ठीक है। पूजा तो अपन 48,000 कैश रिसीव हो गया और 20,000 वो बैड डेट हो गए, 12,000 दे अपने बैड डेट हो गए क्योंकि हुण वो इंसॉल्वेंट है, हुण वो पे नहीं कर पाओगी। मार्च 8 की एंट्री देखो स्टूडेंट, स्नेह सी उस तो अपन 56,000 कैश रिसीव होया है, 56,000 का अपन रिसीव होया है। 56,000 है जो अमाउंट है वो 80% है, 80% अमाउंट दे रखे है 56,000। अपने देखने अपने बैड डेट्स किन्ने हो गई। सो बैड डेट्स निकालने लिए आप स्टूडेंट्स की कीता सीगा, अमाउंट रिकवर्ड 56,000 अमाउंट रिकवर हुई है। परसेंटेज ऑफ नॉन रिकवरी अपन पता है जो 56,000 रुपीज़ ने वो 80% के बराबर है। इट मीनस जो 20% रह गए वो अपने बैड डेट्स हैं। सो 20% की इतने आप रिकवरी नहीं हुई अपन, ठीक है। अपने बैड डेट्स ने उसकी परसेंटेज लिख ली 20%, 100 के विचों 20 माइनस करके 80 आ गए। सो आप कैलकुलेट किया, अपने को आ गए 14,000 रुपीज़। सो 40,000 रुपीज़ अपने बैड डेट्स ने। बैड डेट अकाउंट डैबिट फिर आप कर देंगे 14,000 के नाल, ओके। और स्टूडेंट क्रैडिट कि करांगे आप टू स्नेह अकाउंट रुपीज़ 70,000, ठीक है। नैक्सट एंट्री देखो मार्च 15 की आकांक्षा है, उस तो अपन रिसीव होया 19,900, जिसने आपा जो पास्ट दे विच है उसके अमाउंट उसने अपनी 24,800 देनी सी, लेकिन आपा पिछे लिख के आए कि अपन उसके बैड डेट्स हो गई, ठीक है। सो हुण अपन कितनी रिकवर हुई है 19,900 रुपीज़ कैश रिकवर होया। सो अपन सिर्फ मतलब जो हुण रिकवर हुई है उसके नाल है। सो एंट्री पा देंगे आप स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट रुपीज़ 19,900 टू बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर अपने इनकम होंगी है, सो आप बैड डेट रिकवर नू क्रैडिट कर देंगे। बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रैडिट हो जाऊगा, ठीक है, 19,900 के नाल, क्योंकि स्टूडेंट जिस टाइम आप उसका अकाउंट एज अ बैड डेट लिखा होगा, सो बैड डेट आप डेबिट किए होने हैं। हुण अपन रिकवर हो गया
तो आप उसनू क्रैडिट करते बैड डेट्स में। मार्च 21 की एंट्री देखो स्टूडेंट, दीपशिखा ने 45,000 देना सी, वो डिक्लेयर इंसोलवेंट होगी। उस तो मार्च 21 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ 40% रिकवर होया। सो आप कैश अकाउंट डेबिट टू दीपशिखा किन्ना 40%, 45,000 का स्टूडेंट्स 40% करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाऊ 18,000। 80,000 अपन रिकवर हो गया। $18,000 रिकवर हो गया अपन दीपशिखा तो। फस्ट इंस्टॉलमेंट रिकवर हुई है स्टूडेंट मार्च 31 ਦੇ ਵਿੱਚ सैकेंड एंड फाइनल डिविडेंड मिले 30%। सो स्टूडेंट्स अपन कैश मिल गया 45,000 का। हुण तुसीं 30% करोगे अपने को आ जू 13,500 रुपीज़ अपन मिल के एज अ फाइनल डिविडेंड। इट मीनस जो बाकी रह गया वो अपना बैड डेट हो गया। ठीक है, 13,500 अपने बैड डेट हो गई। सो दीपशिखा तो 27,000 देखो स्टूडेंट 45,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18,000 पे करते सीगे। ठीक है, 18,000 पे करते सी, उस तो बाद 27,000 रह गए। ठीक है, सो 45,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ उसने 30% रुपीज़ होर पे करते। जो 45,000 का आप 30% करांगे अपने को 13,500 आ जाऊगा। 13,500 उसने पे करता। इट मीनस 45,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो बाकी रह गया वो अपना बैड डेट है। सो टोटल दीपशिखा के किन्ने रह गए सी 27,000। सो 27,000 नाल तां एंट्री इत्थे पाती अपनी। ये भी अपना सम स्टूडेंट कंप्लीट होंदा है। नैक्सट 18 सम देखो स्टूडेंट्स, परचेज और सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ने। परचेज गुड्स फ्रॉम करुणा 25,000 दी गुड्स परचेज की हैं। परचेज 1 टेबल 10,000 का, 6 ऑफिस चेयर ऑफ रुपीज़ 1,500 ईच। ठीक है, ईच लिखा स्टूडेंट। सो 1,500 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे। 1 रिवॉल्विंग चेयर 8,000 दी। परचेज 200 शेयर्स ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के आप शेयर परचेज कर ले। 390 का एक शेयर पैंदा आप 200 परचेज किए हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे किन्ने शेयर्स हो गए। परचेज 1 कैलकुलेटर, 1 प्रिंटर, 1 नोट, ये आप रिकॉर्ड करांगे। परचेज 1 गोदरेज अलमीरा कैश बॉक्स। ठीक है, सोल्ड मशीनरी 18,000 एट द बुक वैल्यू। सोल्ड 100 शेयर्स ऑफ टाटा केमिकल्स एट ₹750 पर शेयर। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मनोज विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस। स्टूडेंट्स आप इसनू देखते हैं किस तरीके नाल आप रिकॉर्ड करिए। एक बार तुसी ट्रांजैक्शंस देख लो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट 18 सम का सोल्यूशन देखो। ठीक है, फस्ट ट्रांजैक्शन हैगी अपनी फरवरी 1 दी 2019। परचेज गुड्स फ्रॉम करुणा, गुड्स परचेजेस कितने हैं करुणा तो। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू करुणा। मैं सुन दसिया सी अगर परचेजेस कितियां होन और नेम मैंशन हो, मेनली अगर नेम मैंशन है इट मीनस आप क्रैडिट के उत्ते परचेजेस की हैं। सो करुणा का नेम एंट्री दे विच आऊगा। यही अपना क्रैडिटर हो गया। आप इसी पेमेंट करनी है। ठीक है, आप उस तो परचेजेस का ले आए, गुड्स का परचेज कर लिया है लेकिन उसको कैश नहीं पे किया। सो अपना क्रैडिटर बन गया 25,000 के नाल आप एंट्री पा देनी है। सो फैब 4 की एंट्री देखो हम स्टूडेंट्स। परचेज 1 टेबल 10,000 का, 6 ऑफिस चेयर ऑफ 1,500 ईच एंड 1 रिवॉल्विंग चेयर फॉर 8,000। ये सारा कुछ स्टूडेंट आप बिजनेस के लिए खरीदे हैं। ठीक है, 1 टेबल ऑफिस चेयर रिवॉल्विंग चेयर ये किसी भी आती है स्टूडेंट फर्नीचर के। सो स्टूडेंट्स आप इत्थे इन्ना कुछ ना पाने की बजाय
ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾर्ट है। ਆਪਾਂ फर्नीचर अकाउंट पा लांगे अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, टोटल अमाउंट कर लांगे 10,000 प्लस 9,000 स्टूडेंट देखो किमें आए हैं 1500 ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ऑफिस चेयर्स परचेज की हैं। सो 1500 इंटू 6 9,000 अपना आ गया। 8,000 ਦੀ रिवॉल्विंग चेयर है। सो ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ टोटल करके आ जाओ अपने को 27,000 आप अमाउंट लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नैक्सट एंट्री देखो स्टूडेंट्स टैब 10 दी अपने को परचेज 200 शेयर्स ऑफ कैनरा बैंक एट द रेट ऑफ ₹390 पर शेयर। ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ स्टूडेंट शेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। सो स्टूडेंट्स इसनों ਆਪਾਂ इन्वेस्टमेंट लिखांगे। ਆਪਾਂ शेयर्स परचेज किए किसी बैंक के कैनरा बैंक के, ये अपनी इन्वेस्टमेंट है। सो इन्वेस्टमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ डेबिट करांगे। अपने को कैश चला गया, ਆਪਾਂ शेयर्स परचेज किए सो कैश चला गया, कैश ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्रेडिट करता। स्टूडेंट इत्थे अमाउंट आप लिखांगे 390 पर शेयर ली दिता है। टोटल अपने शेयर किन्ने परचेज किए 200। 390 इंटू 200 करांगे स्टूडेंट अपने को आ जाऊ 78,000 रुपीज़। सो 78,000 के नाल आपां एंट्री पा दी। हुण स्टूडेंट फैब 14 की एंट्री देखो 1 कैलकुलेटर परचेज किया है, एक प्रिंटर परचेज किया, एक नोट काउंटिंग मशीन परचेज की है। स्टूडेंट्स ये सारे भी ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ नेम पाने की बजाय ਆਪਾਂ की रिकॉर्ड करते हैं जर्नल ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, इन्हां ਦਾ टोटल करांगे ਆਪਾਂ अपने को आ जाऊ 1,000 प्लस 12,000 प्लस 45,000 अपने को टोटल आ गया 58,000 टू कैश। ये सम कराने का सिर्फ मेरा यही सी स्टूडेंट्स तुहानूं दसां कि आपां इन्हां हरेक दे नेम नहीं पाते कि ऑफिस शेयर का नेम पा लिया, जिस तरीके नाल इत्थे जिहड़े इक्विपमेंट है प्रिंटर का कैलकुलेटर का, इन्हां नूं आपां सिर्फ कलैक्ट करके सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं। ठीक है, उस तो बाद फैब 17 की एंट्री अपने को स्टूडेंट्स परचेज 1 गोदरेज अलमीरा 14,000 एंड कैश बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, यही अपने होंगे फिक्सचर्स। सो इसनों आप फिक्सचर्स की तरह रिकॉर्ड करांगे। फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टोटल कर देंगे अपने को 20,000 रुपीज़ हो जाएंगे। फैब 19 की एंट्री देखो स्टूडेंट्स सोल्ड मशीनरी वर्थ 18,000 एट बुक वैल्यू काउंटिंग। मशीनरी किन्ने दी बेची आप 18,000 दी। सो अपनी को आ जाओ कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अपने को गई। सो वट गोज आउट आप उसनों क्रेडिट करता 18,000। फैब 24 की एंट्री देखो स्टूडेंट्स सोल्ड 100 शेयर ऑफ टाटा केमिकल्स एट ₹750 पर शेयर। आप बेचिए हूँ शेयर्स नूं। ठीक है, हुण अपने कोल स्टूडेंट्स रुपीज़ आएंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट आप की बेचे शेयर्स की है अपनी इन्वेस्टमेंट सीगी। सो इन्वेस्टमेंट नूं आप क्रेडिट करता 75,000 बिकॉज स्टूडेंट 750 का 1 शेयर से आप टोटल 100 शेयर सेल की है। 750 इंटू 100 आ गया अपना 75,000। फैब 25 की एंट्री देखो स्टूडेंट्स आप एक ओल्ड फर्नीचर है अपने को उसकी बर्थ 9,000 सी, उसनों आप मनोज नूं सेल करता विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस। मनोज नूं बस फर्नीचर सेल करता। ठीक है, सो लिख देंगे आप मनोज टू फर्नीचर किन्ने का सेल करता किन्ने का बेचता 9,000 का। हजे कैश नहीं मिला स्टूडेंट्स आपको इसलिए आप इतने मनोज अकाउंट लिखा है। ठीक है, कैश तो नहीं बेचा क्योंकि उत्थे नेम मैंशन है। सो आप अगर नेम मैंशन हो आप मान के चलते हैं क्रेडिट से है।
सो अपना मनोज डेटर हो गया, डेटर राइज हो गया, इसने अपने रुपये देने हो गए 9000 रुपीज़। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स फुल ट्रांजैक्शन अपनी सारिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हिस्ट्री सम देखो, ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपेंसिस ऑन परचेज एंड सेल। ठीक है, आप मशीनरी या गुड्स परचेज करते हैं, उसके उत्ते अपन कुछ एक्सपेंसिस पे करने होंगे हैं। सो गुड्स के उत्ते अगर आप एक्सपेंसिस पे करते हैं उसका आप अलग अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन अगर अपन एसेट्स के उत्ते कुछ भी एक्सपेंसिस पे करने पैन उसका आप अलग अकाउंट ओपन नहीं करते। उस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज फॉर ₹20,000, फ्राइट पेड 500। गुड्स के उत्ते है, फ्राइट पे किया है, इसलिए इसका आप अकाउंट ओपन करांगे एज अ फ्राइट। मशीनरी परचेज की 30,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 900। इंस्टॉलेशन चार्ज 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। 13,900 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। थर्ड है गुड्स परचेज फॉर 25,000 फ्रॉम प्रिंस। प्रिंस तो आप गुड्स परचेज की हैं। सो स्टूडेंट प्रिंस अपना क्रैडिटर हो जाऊगा, आपने प्रिंस से रुपये देने हो गए क्योंकि इतने आप कैश के उत्ते परचेज नहीं की। सो स्टूडेंट प्रिंस अपना क्रैडिटर बन जूगा। आप एंट्री पावांगे परचेज अकाउंट टू प्रिंस अकाउंट। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन चार्जिस आप पे करते। सो इसके लिए अपन अलग एंट्री पानी पू, कंबाइंड एंट्री नहीं पऊगी। कार्टेज पेड दी, कार्टेज टू कैश आप 300 देना अलग एंट्री पावांगे। सो फैब 4 दी एंट्री देखो, गुड्स कॉस्टिंग 8,000, सोल्ड फॉर 9,500 अगेंस्ट चैक। स्टूडेंट्स इस एंट्री के विच आपां नूं 1500 का प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, गुड्स की कॉस्टिंग 8,000 सी, आप बेस 9500 का 1500 का प्रॉफिट हो रहा। लेकिन गुड्स के केस के विच अगर आपां नूं प्रॉफिट होंदा होवे उसनूं आपां विच अलग शो नहीं करते। सो स्टूडेंट आप इकट्ठी एंट्री पावांगे। आपां नूं की आया, बैंक आया 9,500, क्योंकि चैक के थ्रू आपां नूं आपां सेल जो सेल की तो आपां नूं चैक के थ्रू रुपये आए ने। 9,500 आपां नूं बैंक हो जाऊगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अपने को सेल्स चलिया गई 9,500 के नाल आपां टोटल एंट्री पावांगे। ठीक है, आपां नूं 8,000 के नाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुड्स वाला केस है। गुड्स के विच आप प्रॉफिट अलग नहीं शो करते। नैक्सट एंट्री है देखो, फर्नीचर कॉस्टिंग 9,000, सोल्ड फॉर 11,000, पेमेंट रिसीव्ड बाय डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट भी आप बैंक के विच ही लगाने होंगे। सो स्टूडेंट्स आपां नूं 2,000 का प्रॉफिट होया। फर्नीचर की होंदी है, एसिड होंदी है, एसिड नूं बेच के 2,000 का प्रॉफिट होया। सो एसिड के केस के विच आपां प्रॉफिट शो करांगे। प्रॉफिट होगा उसनूं क्रैडिट कर देंगे ऑन दी सेल ऑफ फर्नीचर। 2,000 का अपन प्रॉफिट है उसनूं आपां क्रैडिट कर देंगे। फैब्री 6 की एंट्री देखो स्टूडेंट, गुड्स कॉस्टिंग 12,000, सोल्ड फॉर ₹15,000। 12,000 के गुड्स 15,000 के उत्ते बेच हैं। आपां नूं 3,000 का प्रॉफिट हो रहा। लेकिन स्टूडेंट इत्थे आपां गुड्स बेच रहे हैं। गुड्स के केस के विच आपां सिर्फ और सिर्फ देखा कि जिन्ने भी सेल की है। सो अपनी एंट्री पू कैश टू सेल्स 15,000। और स्टूडेंट आप सैलिंग एक्सपेंसिस है वो भी अपने लागे। ठीक है, गुड्स बेचने के उत्ते कुछ सैलिंग एक्सपेंसिस पै गए आपां नूं, उसके लिए आप सैलिंग एक्सपेंसिस नूं डेबिट करांगे क्योंकि अपना आपां नूं एक्सपेंसिस पे है। सो सैलिंग एक्सपेंसिस टू कैश 500 रुपीज़। प्रिंटर कॉस्टिंग 12,000, सोल्ड फॉर 15,000। प्रिंटर की कॉस्टिंग स्टूडेंट 12,000 है, उसनों आपां बेचता 15,000 दे विच। स्टूडेंट्स इत्थे सैलिंग एक्सपेंसिस आपां नूं आया 600 एक्सपेंसिस। स्टूडेंट्स अपना जो टोटल प्रॉफिट होया 3,000 दे विचों लैस होणगे। ठीक है, इट मीनस स्टूडेंट आपां नूं जो कैश रिसीव होया है ओह 14,400 का होया होगा, क्योंकि अपन 600 का एक्सपेंसिस पे करने पै गए। ठीक है, ये एंट्री भी स्टूडेंट लास्ट फैब 6 की एंट्री नाल रिलेटेड सेम हैगी। नैक्सट एंट्री फरवरी 8 दी, एंड ऑफिस अलमीरा कॉस्टिंग 15,000, सोल्ड फॉर 13,000, सैलिंग एक्सपेंसिस 500। 15,000 की सी आप 13,000 के विच बेसी, यदा मतलब आपको 2,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, 500 होर एक्सपेंसिस पै गए, 500 आपको सैलिंग एक्सपेंसिस पे करने पै गए। सो स्टूडेंट्स हुण आपां ये 16 सम दियां ट्रांजैक्शनस
ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। देखो स्टूडेंट्स मैं बुक भी नाल रखी है, सो तुहानूं थोड़ा जिहा सौखा हो जाए, कोशिश करूँगी कि मैं नाल समझा सकां। देखो स्टूडेंट्स, आप गुड्स परचेज की 20,000 दियाँ और फ्राइट पे किया 500 का। अपने को की आ गया स्टूडेंट परचेजिज अकाउंट डैबिट, ठीक है। आप कैश के विच ही गुड्स परचेज की है और फ्राइट भी पे किया है, सो इसकी आप कंबाइंड एंट्री पा सकते हैं स्टूडेंट टू कैश। फ्राइट भी पे किया है, फ्राइट आप अलग शो करते हैं फ्राइट अकाउंट, बिकॉज गुड्स के उत्ते एक्सपेंस है ही। फ्राइट पे कितना पै गया अपन परचेज करने के नाल कुछ भाड़ा भी पे करना पै गया, ठीक है, कि अपने घर तक गुड्स पहुँच जाए 500। नैक्सट एंट्री देखो स्टूडेंट फैब 2 दी मशीनरी परचेज की 30,000 की, इंस्टॉलेशन चार्जिस 900। मशीनरी के उत्ते अगर एसेट है उसके उत्ते आप एक्सपेंसिस पे किए, उसनों आप अलग शो नहीं करते। सो मशीनरी अकाउंट डैबिट टू कैश अकाउंट इसका टोटल करके पावांगे 30,900। ओके स्टूडेंट, फरवरी 3 की एंट्री देखो, गुड्स परचेज फॉर 25,000 फ्रॉम प्रिंस, कार्टिस पेड 300। गुड्स परचेज की हैं, परचेजिज अकाउंट डेबिट टू प्रिंस, प्रिंस अपना क्रेडिटर है, उसने अपने उसनों पे करना, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। 25,000 कार्टिस आप कैश के विच पे की है स्टूडेंट्स। सो फरवरी 3 की होर एंट्री पावांगे, कार्टिस अकाउंट डैबिट, कार्टिस एक्सपेंस है इसलिए डैबिट किया टू कैश 300। उस तो बाद स्टूडेंट्स फरवरी 4 की एंट्री देखो, गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड फॉर 9,500 अगेंस्ट चेक। सो स्टूडेंट्स फरवरी 4 अपने बैंक अपने को आ गया 9,500। गुड्स के उत्ते आपां प्रॉफिट हो रहा 1,500। सो आप इसनों मैंशन नहीं करते, जस्ट लिखांगे अपने कोलों सेल्स करके रुपये आए हैं 9,500। नेक्स्ट है स्टूडेंट फरवरी 5, फर्नीचर कॉस्टिंग 9,000 सोल्ड फॉर 11,000, पेमेंट रिसीव थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के थ्रू रिसीव हुई है, फर्नीचर है अपना। सो स्टूडेंट्स आप पावांगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बैंक अकाउंट, बैंक कितना आया अपन स्टूडेंट 11,000 रुपीज़, 11,000 रुपीज़ अपने को आ गए। 9,000 फर्नीचर दे है और जो 2,000 रुपीज़ है वो अपन प्रॉफिट हो गया। 9,000 के गुड्स आप 11,000 के बेचे हैं, सो 2,000 का अपन प्रॉफिट हो गया। फरवरी 6 की एंट्री देखो स्टूडेंट्स, फरवरी 6 के विच की कह रहे, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड 15,000, सैलिंग एक्सपेंसिस पे किए 500। देखो गुड्स है आपको की मिला, कैश आ गया अपने को, कैश टू सेल्स 15,000 की आप सेल करती स्टूडेंट्स, उसके उत्ते आपको सैलिंग एक्सपेंसिस पे करने पै जे। फरवरी 6 की एक होर एंट्री पै जूगी, सैलिंग एक्सपेंसिस नूं डैबिट करांगे क्योंकि ये अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंसिस नॉमिनल अकाउंट के विच डैबिट होंगे स्टूडेंट्स टू कैश अकाउंट कितना 500 रुपीज़। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपने को फैब 7 की एंट्री है,
इस दे विच स्टूडेंट आप प्रिंटर परचेज किया है, सॉरी प्रिंटर सेल किया है, प्रिंटर सेल किया है। कैश टू ऑफिस इक्विपमेंट, प्रिंटर नूं आपां ऑफिस इक्विपमेंट लिखांगे स्टूडेंट्स 15,000। Feb 7 की एक होर एंट्री होगी, सैलिंग एक्सपेंसिस टू कैश ₹600। एक लास्ट एंट्री रह गई अपनी स्टूडेंट्स, फरवरी 8 की एंट्री है। एंड ऑफिस अलमीरा कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर 13,000। 15,000 की आप 13,000 के वेच इट मीनस 2,000 का लॉस हो गया। सो स्टूडेंट्स पावांगे आप स्टूडेंट अपने ऑफिस अलमीरा नूं आपां फिक्सचर लिखते होंगे। सो अपन 2,000 का लॉस हो गया सी, लॉस आप डेबिट करते होंगे। कैश अपन 30,000 रिसीव हो गया, लॉस 2,000 डेबिट करता टू फिक्सचर्स अकाउंट 50,000। उस तो बाद सैलिंग एक्सपेंसिस पे किए 500 देना। सो सैलिंग एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस वीडियो के विच स्टूडेंट्स आपां नैक्सट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करांगे ताकि सोनू जर्नल एंट्रीज होर क्लीयर हो जाए। स्टूडेंट 18 सम देखो, ये रिलेट करता है लॉस ऑफ गुड्स और कैश। अपना गुड्स लॉस्ट हो जाए, ठीक है, उस टाइम जो अपन लॉस हो जाए, अपन गुड्स लॉस्ट हो जाए, कैश अपना चोरी हो जाए, ठीक है, उस टाइम आप इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। जिन्ने का आप इंश्योरेंस लेता होंगे उन्ना का अपन इंश्योरेंस कंपनी है वो पे कर देंदी है, ठीक है। अगर नहीं लिया दैन अपनी बिजनेस के लिए वो लॉस होंदा है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लिया तो अपने बिजनेस की ओनी अमाउंट जिन्नी आपां लॉस हो गया वो नुकसान होंदा है। बेसिकली लॉस हो जाता है बिजनेस के विच काम करते हैं। कई बार रिस्क होंदे है लाइक फायर, अर्थक्वेक, नैचुरल कॉजेस करके भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो बहुत कारण होंदे जिस करके नुकसान हो जाता है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट 18 सम दे नाल। इस दे विच फर्स्ट एंट्री गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 16,000, गुड्स वर अनइंश्योर्ड। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया 16,000 दियाँ, वो अनइंश्योर्ड सी, मतलब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं लेता हुआ सी। सो 16,000 दियाँ गुड्स का आपां नूं नुकसान पै गया। 2019 की फर्स्ट एंट्री Feb 1 की एंट्री मैंने रिकॉर्ड करती स्टूडेंट्स। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसिज, जिन्हें नाल आपां लॉस होया हुंदा है वो सारे अगर गुड्स है, गुड्स अपनियां खराब हुई हैं, आपां टोटल अमाउंट दे नाल परचेजिज नूं क्रेडिट कर देने 16,000 दे नाल अपनी एंट्री पै गई स्टूडेंट्स, ठीक है। लॉस बाय फायर अपना नुकसान है इसलिए आपां डेबिट किया है। सैकेंड एंट्री गुड्स डिस्ट्रॉय बाय रेन 90,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड दी फुल क्लेम कि इंश्योरेंस कंपनी कहती मैं फुल रुपये दे दूँगी, ठीक है, उसने एडमिट कर लिया क्लेम, ठीक है, हजे पे नहीं किया बट एडमिट कर लिया। सो इंश्योरेंस कंपनी की है अपनी डेटर होगी, आप इंश्योरेंस कंपनी तो 90,000 रुपीज़ लेने हो गए। सो इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट करता टू परचेजिज, क्योंकि उसने इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एडमिट कर लिया सी, इसलिए आप फुल अमाउंट के नाल डेबिट करता 19,000 रुपीज़, ठीक है। उस तो बाद स्टूडेंट गुड्स डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट ₹25,000, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम 90,000। अपनी गुड्स है 25,000 दियाँ खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कंपनी कहती सिर्फ क्लेम 90,000 का क्लेम ले लिया कंपनी ने, अपन 19,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। 25,000 के विचों 19,000 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट कंपनी अपन दे दूगी, ठीक है। ਜਿਹੜੇ बाकी है उस अपना नुकसान हो गया ट्रांजिट, आप पहुँचाते सी किसी एक जगह तो दूजी जगह पहुँचा रहे सी, उस टाइम अपन गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। सो 6,000 का अपन क्लेम बिल्कुल नहीं मिलने लग्या। ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी डेटर होगी, उस तो आप क्लेम 90,000 का रुपये लै लाँगे, ठीक है। टू परचेजिज तुहानूं पता ही है, टोटल अमाउंट अपना 25,000 के नाल आप परचेजिज नूं क्रेडिट करता। नैक्सट है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फ्लड। हुण फ्लड्स आ गए, 38,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैल्प करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने अपन फुल क्लेम रिसीव
फुल क्लेम देता क्योंकि नैचुरल कॉजेज करके आया सी। सो गवर्नमेंट ने हैल्प की है, इसलिए अपन क्लेम फुल दे फुल 30,000 रुपये देते बाय चैक। सो स्टूडेंट्स अपने को बैंक आ गया, चैक किया तो बैंक टू परचेजेज 38,000। ठीक है। कैश स्टोलन फ्रॉम द कैश बॉक्स 45,000 with the help of police 27,000 could be recovered on the same day। कैश स्टोल हो गया सी अपनी बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ कैश बॉक्स लग्या ਹੁੰਦਾ जिथे सारे रुपये धरते हैं, उसके ਵਿੱਚੋਂ 45,000 रुपया कैश है जो स्टोल हो गया सी, चोरी हो गया सी। 27,000 रुपये पुलिस की हेल्प के नाल उस टाइम ही मिल गए, लेकिन आपां नूं नुकसान देखो स्टूडेंट्स किन्ने रुपया का हो गया। आपां नूं नुकसान तक मतलब है नुकसान अपना स्टूडेंट 45,000 दे विचों अगर 27,000 घटाइए अपना नुकसान हजे भी 8,000 का है। सॉरी स्टूडेंट 18,000 का हजे भी नुकसान है। 45,000 तो 27,000 घटाए 18,000 का लॉस है। सो आप रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन फरवरी 18 दी लॉस बाय थैफ्ट टू कैश काउंट 18,000। इत्थे आप स्टूडेंट परचेजिज इसलिए लिखिया, इस टाइम अपना कैश चोरी होया है, कैश गया है। जो अपने गुड्स चाहदियाँ होंगे तो आप परचेजिज लिख दें। ठीक है। हुण अपना कैश गया, सो क्रैडिट आप कैश नूं किते 18,000 देना। उस तो बाद 25 Feb दी एंट्री गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट 91,000। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 71,000। इंश्योरेंस कंपनी कहती सिर्फ 75,000 रुपये दे दूगी। सो 20 Feb 25 दी एंट्री बैंक 71,000 लॉस बाय एक्सीडेंट 20,000 का अपना नुकसान हो गया, अपन कितों नहीं मिलने लग्या। 91,000 दिया टोटल परचेजिज ही क्रैडिट करता। 26 की एंट्री देखो स्टूडेंट, गुड्स लॉस बाय एम्बेजलमेंट 25,000। गुड्स अपने लॉस हो गया थ्रू एम्बेजलमेंट। सो 25,000 दिया गुड्स अपनी लॉस हो गया, लॉस बाय एम्बेजलमेंट टू परचेजिज 25,000। 27 दी एंट्री है भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड दी अबव क्लेम 90,000 का एडमिट कर लिया क्लेम भारतीय एलेक्सा कंपनी ने। सो आप एंट्री पावांगे 27 फरवरी नूं भारतीय एलेक्सा इंश्योरेंस कंपनी टू परचेजिज 19,000। हुण स्टूडेंट देखो 28 Feb दी एंट्री है इंश्योरेंस कंपनी पेड दी अबव क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने जो अबव वाला 19,000 वाला क्लेम सी पे करता। सो आप की करांगे कैश अकाउंट डैबिट, अपने को कैश आ गया, कैश नूं आप डैबिट कर देंगे। सो हुण अपना डेट इंश्योरेंस कंपनी सी वो खत्म हो गया, इसलिए आप इंश्योरेंस कंपनी नूं हुण क्रैडिट कर देंगे। सो इसका इफैक्ट खत्म हो गया, इसनूं क्रैडिट करता। ये कौन है हुण इंश्योरेंस कंपनी गिवर है। ठीक है, इसने आपां कैश पे करता। सो इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट होंगे, इसनूं क्रैडिट करता अपने 19,000 देना। नैक्सट क्वेश्चन 29 से देखो स्टूडेंट, ये मिसलेनियस है। इस दे विच की है एक्सचेंज ओल्ड बिल्डिंग बट 20,000 फॉर अ प्लाट ऑफ लैंड बट 30,000 बैलेंस पेड इन कैश। स्टूडेंट आप एक्सचेंज वाले टॉपिक पढ़िया सी, जो आप एक्सचेंज कर लेने होंगे पुरानी चीज़ नूं नवीं चीज़ दे नाल, ओह वाला सम ही है ये। इस दे विच की है 20 लाख की ओल्ड बिल्डिंग है, उसनूं आपां नवा प्लॉट ले लिया 30 लाख का, 30 लाख का नवा प्लॉट ले लिया, उस दिन एक्सचेंज कर लिया, बैलेंस है वो कैश पे करते। सो स्टूडेंट अपने को की आया प्लॉट आया लैंड टू कैश 10,000। ठीक है, लैंड टू कैश भी आप पा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर आप फुल एंट्री शो करनी है दैन आप की पावांगे मार्च 1 दी लैंड टोटल 30,000 दी है जो आप लै ली। उस दे बदले आप स्टूडेंट एक ओल्ड बिल्डिंग है, जो ओल्ड बिल्डिंग है वो पे देती, उसकी वैल्यू 20 लाख सी और कैश दिता है 10 लाख। ठीक है, इस तरीके नाल भी पा सकते हैं, लेकिन लैंड टू कैश 10 लाख के नाल भी एंट्री आप पा सकते हैं। उस तो बाद स्टूडेंट एक्सचेंज किया अपने ओल्ड कंप्यूटर 60,000 का विद फॉर न्यू ₹110,000 बैलेंस पेड फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट। सो स्टूडेंट आपने कंप्यूटर ले लिया, न्यू कंप्यूटर आ गया 110,000 का, उसके लिए आप ओल्ड कंप्यूटर बेचता 60,000 का और कुछ रुपये आप पे करते एज आ पर्सनल बैंक अकाउंट के पे किए स्टूडेंट। सो आप कैपिटल अकाउंट लिखांगे 15,000 के नाल।
कैपिटल क्रैडिट इसलिए किया स्टूडेंट बिकॉज ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। नेक्स्ट है चार्ज 10% डेप्रीसीएशन ऑन मशीनरी 85,000 का 10% 8500 डेप्रीसीएशन डेबिट होंगी है। सो डेप्रीसीएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 8500। March 7 provide 12% interest to the proprietor on his interest on his capital 2 lakh 12% पे किया 2 लाख के उत्ते। सो इंटरस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, सो डेबिट करता। इंटरस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल 24,000 2 लाख का 12% आ गया 24,000। मार्च 10 देखो चार्ज 8% इंटरस्ट फ्रॉम द प्रोप्राइटर ऑन हिज ड्राइंग 50,000 के उत्ते आप इंटरस्ट चार्ज कर लिया प्रोप्राइटर तो। सो ये इनकम है। मार्च 10 की ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट ऑन ड्राइंग 4,000 रुपीज़ आ जाएंगे। अगर आप 50,000 का 8% करांगे 4,000 रुपीज़ आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अपने को कलैक्शन चार्जेस 450 डिडक्टेड बाय बैंक फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑन ऑफ द बिजनेस। बैंक कुछ चार्जिस कट करता रहा, ठीक है। बैंक ने हुण कुछ कलैक्शन चार्जिस डिडक्ट कर ले बैंक अकाउंट के विचों, बैंक के करंट अकाउंट के विचों। ये बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, सो इसनों डेबिट करांगे कलैक्शन चार्जिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि इत्थे आपां स्टूडेंट बैंक अकाउंट इसलिए लिखिया क्योंकि अपने बैंक अकाउंट के विचों ही पैसे जो है वो घटे हैगे। सो बैंक इसलिए इसनों क्रैडिट करता आपां 450 के नाम। नेक्स्ट एंट्री पेड 150 रुपीज़ फॉर द परचेज ऑफ रिफ्रैशमेंट फॉर द कस्टमर। कुछ आप रिफ्रैशमेंट दिंदे अपने कस्टमर नूं, लाइक जो कस्टमर आते उन्होंने वैलकम लई जां कुछ उन्होंने चाह पानी लई उन्होंने कुछ खर्चा पै जाता, आपां नूं 150 रुपया खर्चा पै गया, ये अपने एक्सपेंस हो गया। सो इसमें लिखांगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश 150, ठीक है। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर रुपीज़ 730। कुछ अपने ओल्ड न्यूज़पेपर होंगे है रद्दी होंगी है उसनों बेचती 730 नाल। सो अपन कैश रिसीव हो गया। इसनों आप स्टूडेंट मिसलेनियस रिसिप्ट्स लिखते हैं। ऐसे इधर छोटे मोटे जो अपन कैश रिसीव होंगे उसनों मिसलेनियस रिसिप्ट्स लिखते हैं 730 के नाल रिकॉर्ड करना।